Hello, my dear students, my well wishers. Welcome back to my YouTube channel, English with Ishfaq Shafi. This is the sixth lecture of pronouns, and in this lecture, we are going to learn about the demonstrative pronouns. So, today's lecture is about demonstrative pronouns. First of all, we will try to understand what demonstrate means. Demonstrate means to show something clearly by giving proof, or in other words, we can say demonstrate means to show and explain somebody how to do something or how something is done. For example, if you are in a parking zone and there are hundreds and thousands cars in the parking zone, and you point to a car and say, "This is my car. This is my car." The moment you say, "This is my car," it makes it special and makes it particular and single it out from other cars. So, demonstrative pronoun is a pronoun used to point to specific people, objects, or we can say things, animals, etc. For example, imagine you are in a room, and in the room there is a table next to you and a table far away from you. When you are talking about the table nearer to you or closer to you, you would point to it and say, "This is a table. This is a table." And when you are talking about the table which is far away from you, you would point to it and say, "That is a table. That is a table." These are tables and those are tables if there are more than one table. So there are four demonstrative pronouns: this, that, these, and those. ये क्या है? फोर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस एंड दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स. These and those demonstrative pronouns are used with plural nouns. This and that जो है ये सिंगुलर नाउन्स के लिए आते हैं, और these and those demonstrative pronouns जो है ये प्लूरल नाउन्स के लिए आते हैं. अब सवाल बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? पेन है. अब मैं क्या कहूं? दिस इज अ पेन या दैट इज अ पेन, क्योंकि पेन सिंगुलर है और दिस भी सिंगुलर नाउन्स के लिए आता है और दैट भी सिंगुलर नाउन्स के लिए आता है. अगर एक से ज्यादा होते, ठीक है, ये दो है, तो मैं कहूं, अब मैं प्लूरल नाउन्स, ये प्लूरल नाउन्स है, प्लूरल नाउन्स के लिए क्या आते हैं? दीज या दोज. अब मैं क्या कहूं? दीज आर पेन्स या दोज आर पेन्स. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. हमने अक्सर सुना है ये जो दिस और दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये नजदीक के चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दैट और दोज जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, विच आर फार अवे फ्रॉम यू. तो जो नजदीक कोई चीज हमारे होगी तो उसके लिए हम दिस या दीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नजदीक किस लिहाज से है? ठीक है, तो दिस और दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है, दिस एंड दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस are used with objects nearer to you
दिस और दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं जो हमारे नजदीक होते हैं। नजदीक किस लिहाज से? इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसी तरह दैट जो है, दैट और दोज एंड दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं विच आर फार अवे फ्रॉम यू, फार अवे फ्रॉम यू। दैट और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमसे दूर होते हैं, चाहे डिस्टेंस के लिहाज से या चाहे टाइम के लिहाज से। बात करिए, लेट मी रिपीट, दिस एंड दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट व्हिच आर नियरर टू यू इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और इन टर्म्स ऑफ टाइम। That and those demonstrative pronouns are used with the object which are far away from you, whether in terms of distance or in terms of time. बात करिए, if a thing is in singular form and is nearer to you, you would use the pronoun, demonstrative pronoun this. And if a thing is in plural form and is nearer to you, you would use the demonstrative pronoun these. Likewise, if a thing is in singular form and is far away from you, you would use the demonstrative pronoun that. Similarly, if a thing is in plural form and is far away from you, you would use the demonstrative pronoun those. बात करिए। लेकिन कुछ occasions ऐसे कुछ sentences ऐसे होते हैं जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ this इस्तेमाल करना है और कहीं कहीं पर हमें सिर्फ दैट का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह कहीं जगह पे हमें सिर्फ दीज का इस्तेमाल करना होता है और कहीं जगह पे सिर्फ दोज का इस्तेमाल करना होता है। सो फॉर दैट आई विल फ्रेम सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड एंड वी विल डिस्कस व्हाई टू यूज ओनली दिस, व्हाई टू यूज ओनली दैट, व्हाई टू यूज दीज एंड व्हाई टू यूज दोज। देयर आर सम स्टूडेंट्स who think that pronoun is a topic, pronoun is a thing which we don't need to learn. I would like to tell them that pronoun chapter, pronoun topic is a very important topic and it plays a very important role in English grammar. Each topic, each chapter plays a very important role in English grammar. Similarly, pronoun also plays a very important role in English grammar. And pronoun जो होते हैं it is so much related to adjectives. When we learn in the previous videos types of pronouns like interrogative pronouns, relative pronouns, तो वहां पर हमने सीखा कि ये जो interrogative pronouns है, these pronouns are also used with as adjectives, वो हमने पिछले डिस्कस किया है। और ये जो interrogative pronouns है वही एज रिलेटिव प्रोनाउंस भी इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं में से कुछ एज रिलेटिव प्रोनाउंस भी इस्तेमाल होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो प्रोनाउन का भी काम करते हैं और कहीं कहीं जगह पे वो कंजक्शन का भी काम करते हैं। तो प्रोनाउन जो है इसको हमें हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से, बड़े लगन के साथ हमें इस चैप्टर को भी सीखना है। और ये जो प्रोनाउन टॉपिक जो है, अगर ये हेडिंग के तौर पर आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ती है व्हेन वी लर्न पैसिवेशन नरेशन। क्योंकि पैसिवेशन में जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो वहां पे जो सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। तो हमें प्रोनाउंस का पता होना चाहिए कि इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या है, इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, रिफ्लेक्सिव केस क्या है, तभी ये चीजें हम कर सकते हैं। नरेशन में जैसे टेंस चेंज होता रहता है, तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं नरेशन में, तो टेंस चेंज होता रहता है। तो इसी तरह प्रोनाउंस भी चेंज होते रहते हैं। तो प्रोनाउंस चैप्टर जो है
दैट इज व्हाई इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर। तो यही प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े, दिस दैट दीज दोस। तो जब हम जहां जिस किसी भी सेंटेंस में अब हमें ये दिखेंगे तो हमें नहीं कहना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि यही प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स का भी काम करते हैं, तो उनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब सवाल बनता है हाउ टू आइडेंटिफाई इज दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इज दिस इज demonstrative adjectives. Very simple. While doing the exercise we will learn how to identify is this is demonstrative pronoun or is this is demonstrative adjective. So be with me, I will be back with some beautiful examples. Here I am back with some beautiful examples. और हर एक सेंटेंस में ऑलमोस्ट एक एरर है और उस एरर को हमें आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि वहां पे कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस को पहले हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे हम करते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दैट इज माई स्कूल वायर आई कम डेली। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, एक है इज वर्ब 1 और दूसरी वर्ब है कम। तो वर्ब का सब्जेक्ट देखने के लिए हम वर्ब से दो सवाल करते हैं, हु या व्हाट। उसका जो रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम वर्ब से दो सवाल करते हैं, व्हाट या होम। उसका जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है, तो दैट इज माई व्हाट, वो मेरा क्या है, स्कूल है। तो स्कूल जो है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, ये इज जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं उनके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो किसका स्कूल, माय स्कूल। माय क्या है, स्कूल जो है ये एक नाउन है और जो कोई वर्ड किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, डिफाइन करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो माय क्या है, एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब कंफ्यूज नहीं होना, स्कूल जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और काम क्या करता है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। और माय जो है एक प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, काम करता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इफ यू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम haven't watched my previous videos, I recommend you to watch my previous videos first so that it will become easier for you to understand the things. ठीक है, how to deal the things. तो who come, I क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट। what I come, मैं क्या आता हूं। do we get any reply? No. What I come, home I come, do we get any reply? No. When I come, daily. तो daily जो है ये इस वर्ब को डिफाइन करता है, किस वर्ब को, कम को। और कम क्या है, एक वर्ब है। और जो कोई वर्ड किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, डिफाइन करे, क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, वो एडवर्ब कहलाता है। तो डेली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, इस सेंटेंस में दो वर्ब्स है और दो वर्ब्स है तो दो क्लासेस है। दो क्लासेस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए। तो वायर जो है ये कंजक्शन का काम करता है। क्यों, ये इन दो क्लासेस को जोड़ने का काम करता है, इस क्लास को और इस क्लास को। वायर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां पे काम करता है कंजक्शन का। ठीक है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउंस को जो है, रिलेटिव प्रोनाउंस जो है उनको प्रोकेज कहते हैं। अब देखो, वर्ब आया, इसका सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आया, इसका सब्जेक्ट नहीं आया, वर्ड बचा एक, वो है दैट। तो इसका मतलब है ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों, हर एक सेंटेंस में एटलीस्ट एक वर्ब होती है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वर्ब का होना जरूरी है। और हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होते भी है, नहीं भी होते हैं। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है। अब ये जो दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया, क्या ये सही है या गलत है? अगर हम इस क्लास ऑफ द सेंटेंस पे गौर करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है।
तो देखो, दैट इज माई स्कूल, मैं कहता हूं वो मेरा स्कूल है जहां मैं रोज आता हूं। ध्यान से तो सुनो, वो मेरा स्कूल, दैट इज माई स्कूल, वो मेरा स्कूल है जहां मैं रोज आता हूं। तो अब देखो, मैं अपने दोस्त के साथ हूं और मैं अपने दोस्त को कहता हूं कि वो मेरा स्कूल है जहां मैं रोज आता हूं। क्या एक, या बेहतर है कि मैं कहूं कि वो मेरा स्कूल है जहां मैं रोज जाता हूं। तो जब मैं कहता हूं जहां मैं रोज आता हूं, इसका मतलब है कि मैं स्कूल के पास हूं। मैं स्कूल आता हूं, इसका मतलब है मैं स्कूल के पास हूं। अगर मैं कहूं वो मेरा स्कूल है जहां मैं रोज जाता हूं, तो इट मीन्स जाता हूं का मतलब है कि मैं स्कूल से दूर हूं। जब मैं कहता हूं आता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं स्कूल के पास हूं। तो इस क्लास से मुझे समझ आता है कि ये जो दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये यहां पे सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज मेरे नजदीक है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम उसके लिए कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? वो है दिस। तो दिस सही है। तो मैं कहूंगा दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है जहां मैं रोज आता हूं। अगर दूर होता तो मैं कहता कि ये वो मेरा स्कूल जहां मैं रोज जाता हूं। अगर यहां पे गो होता तो यहां पे दैट सही है, यहां पे कम है तो दिस सही है। ठीक है, अब दूसरा देख लो, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दिल्ली। मैं कहता हूं कश्मीर का क्लाइमेट जो है वो ज्यादा ठंडा है दिल्ली से। मैं यहां पे कंपेयर किस चीज को कर रहा हूं? कश्मीर के क्लाइमेट को दिल्ली के साथ कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली के किस चीज के साथ कंपेयर कर रहा हूं? असल में मुझे क्या करना है? कश्मीर के क्लाइमेट को दिल्ली के क्लाइमेट के साथ कंपैरिजन करना है। ठीक है, वरना मैं यहां पे कहता हूं दिल्ली से। दिल्ली की किस चीज से? देखो, मान लो कि यहां पे दो लड़के हैं, मैं कहता हूं कि ये लड़का जो है ये ज्यादा खूबसूरत है इस लड़के की हाइट से, या कहूंगा इस लड़के की हाइट जो है वो ज्यादा है इस लड़के की खूबसूरती से। डज इट मेक एनी सेंस? नो। क्यों? क्योंकि मैं खूबसूरती का कंपैरिजन हाइट के साथ करता हूं, या ऐसे कहेंगे कि हाइट का कंपैरिजन मैं खूबसूरती के साथ करता हूं, तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। इसको कहते हैं आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किन का होता है? हाइट का हाइट के साथ कंपैरिजन होना चाहिए और ब्यूटी का ब्यूटी के साथ। तो इसी तरह द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दिल्ली। तो असल में मुझे लिखना क्या है? The climate of Kashmir is cooler than the climate of Delhi. ये लिखना है, The climate of Kashmir is cooler than the climate of Delhi. अभी भी थोड़ा एरर है, तो वो एरर देखने से पहले सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं। इज क्या है? वर्ब है। तो अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? क्लाइमेट बनेगा, कश्मीर बनेगा। ठीक है, वो कैसे? देखो, सबसे पहले इसको छोड़ दो, पहले देखो कूलर जो है वो क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बोलोगे कि सर यहां पे स्कूल जो है ये नाउन है, तो इसी नाउन जो है ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ये कूलर जो है ये एडजेक्टिव है, कूलर, कूलेस्ट, ये तो एडजेक्टिव है, ये कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा? ये हमने पीछे पढ़ा है कि एडजेक्टिव जो है वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, नाउन्स भी और प्रोनाउन्स भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। बात क्लियर? और वहां पे हमने पीछे सीखा है कि ये जो ऑफ है ये एक प्रपोर्शन है, ऑन, इन, इनटू, ऑनटू, अबाउ, ओवर, अंडरनीथ, बिलो, ये क्या होते हैं? प्रपोर्शनल्स होते हैं। और प्रपोर्शन के बाद कौन आते हैं? नाउन या प्रोनाउन। वो क्या कहलाते हैं? प्रपोर्शनल ऑब्जेक्ट। आपके बाद कौन सा नाउन आया है? कश्मीर। बात के लिए कूलर क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द क्या है? आर्टिकल है। तो क्लाइमेट जो है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। क्यों?
द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दिल्ली। व्हाट इज कूलर देन दिल्ली? क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब देखो ये जो द क्लाइमेट जो है ये 2 बार आया और नाउन उसको बार बार दोहराना ना पड़े इसलिए क्या बनाए गए हैं? प्रोनाउंस। तो यहां पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? दैट। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब मसला है कि इसको ब्रेक करते हैं। आप क्या है? प्रपोशन है। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो देन क्या है? देखो देन जो है ये 2 काम करता है, कंजक्शन का काम करता है और प्रपोशन का काम करता है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं आई स्पेंड मोर मनी देन आई अर्न। देखो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में वर्ब्स कितने हैं? 2 है। एक है स्पेंड, दूसरी है अर्न, यानी कि V1 V2। हु स्पेंड्स मोर मनी? कौन ज्यादा खर्च करता है? आई क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। व्हाट आई स्पेंड? मैं क्या खर्च करता हूं? मनी। तो मनी क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है। कितना खर्च करता हूं? मोर, ज्यादा। तो मनी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो मोर क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। वर्ब आया, सब्जेक्ट आया। अर्न जो है ये वर्ब है। हु अर्न्स? कौन अर्न करता है, कमाता है? आई क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। तो 2 वर्ब्स है, एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है। इसका भी सब्जेक्ट आया, इसका भी सब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते हैं। तो ये 2 वर्ब्स है तो 2 क्लास है। 2 क्लास को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए और वो कंजक्शन का काम कौन करता है? देन। देन क्या है? एक कंजक्शन है, यहां पे कंजक्शन का काम करता है। तो देन जो है ये इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करता है, कंजक्शन का काम करता है और प्रपोशन का काम करता है। तो यहां पर देन जो है ये प्रपोशन का काम करता है। ठीक है। और प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो दैट जो है ये क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या काम करता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो दैट जो है ये प्रपोशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात कर लिए। अब देखो ये These are the keys which I found on the road। चलो इसको ब्रेक करते हैं। आर क्या है? वर्ब है। और इसमें कौन सी वर्ब है? फाउंड, V2। चलो पहले इसको करते हैं। हु फाउंड? आई क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट 2। ऑन क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो इस ऑन के बाद, इस प्रपोशन के बाद आने वाले नाउन जो है वो है रोड। तो ये क्या है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। द क्या है? आर्टिकल है। ठीक है। आर क्या है? दीज आर व्हाट? ये क्या है? कीज है। कीज क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं, उनके सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। द क्या है? एक आर्टिकल है। These are the keys। What are the keys? These। ये क्या है? keys। These जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1। बात कर लिया। 2 वर्ब 1 वर्ब 2, इसका भी सब्जेक्ट आया, इसका भी सब्जेक्ट आया। 2 वर्ब्स है, 2 क्लास है। 2 क्लास को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। तो कंजक्शन का काम कौन करता है? ये विच कौन सा है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। काम क्या करता है? कंजक्शन का काम। प्रोनाउन का भी काम करते हैं, कंजक्शन। यहां क्या काम करता है? कंजक्शन का। तो जब मैं कहता हूं दीज आर द की विच आई फाउंड ऑन द रोड, ये वो चाबियां है, ये वो कीज है जो मैंने कहां पे उठाई? रोड पर। तो दीज जब मैं कहता हूं दीज आर द कीज, यानी कि दीज आर द कीज जब मैं कहता हूं कि यानी कि कीज जो है ये मेरे पास है। अगर मैं कहता कि दोज आर द कीज, दैट मीन्स कि वो मेरे पास नहीं है। तो यहां पे दोज भी सही है, दीज भी सही है। लेकिन दीज कहकर मैं ये कहता हूं कि कीज जो है वो मेरे पास ही है। ठीक है। अब देखो ये
दोज आर माई क्लोथ्स, आर क्या है, वर्ब है, दोज आर व्हाट, क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट, माई क्या है, किसके क्लोथ्स, माई क्लोथ्स, माई जो है ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, और क्लोथ्स जो है किसको डिफाइन करता है, क्लोथ्स को, क्लोथ्स क्या है, नाउन है, तो जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, दोज क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, दीज आर माई क्लोथ्स भी कह सकते हैं, दोज आर माई क्लोथ्स भी कह सकते हैं, जब मैं कहता हूं कि दोज आर माई क्लोथ्स तो इसका मतलब है कि वो मेरे पास नहीं, वो मुझसे दूर है, अगर मैं कहता कि दीज आर माई क्लोथ्स दैट मीन्स कि वो मेरे पास है, नजदीक है, ठीक है। चलो वो देखने से पहले ये देख लो, द डिजाइन ऑफ योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट हाउस, आपके मकान का डिजाइन ज्यादा खूबसूरत है उस मकान से, उस मकान के किस चीज के साथ, उस मकान की हाइट से या उस मकान के डिजाइन से, कंपैरिजन क्या, डिजाइन का डिजाइन के साथ ही होना चाहिए ना, जैसे हमने ऊपर देखा, तो देखो अगर मैं कहूंगा कि द डिजाइन ऑफ योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दैट हाउस, देन दैट ऑफ दैट हाउस, क्या ये सही लगता है, बोलने में क्या अजीब सा लगता है लेकिन सही है, कैसे सही है वो हम देखेंगे प्रूव करके, देखो इज क्या है, वर्ब है, इज क्या है, वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, हाउस है या डिजाइन है, देखो आप क्या है, प्रपोशन, प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट, इस आपके बाद आने वाला नाउन जो है वो कौन है, हाउस है, तो हाउस जो है प्रपोशनल ऑब्जेक्ट है, किसका हाउस, यूअर हाउस, यूअर जो है ये किसको डिफाइन करता है, हाउस को, हाउस क्या है, एक नाउन है, और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, तो यूअर क्या है, एक एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, द क्या है, आर्टिकल है, तो इस जो है इसका सब्जेक्ट है डिजाइन, डिजाइन ऑफ योर हाउस इज व्हाट, कैसा है, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव, जैसे पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है, कूल कूलर कूलेस्ट, स्ट्रांग स्ट्रांगर स्ट्रांगेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इसी तरह ब्यूटीफुल जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव ऐसा है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देन दैट हाउस, देन क्या है, ये दो काम करता है, कंजक्शन का काम करता है और प्रपोशन का काम करता है, चलो देखो, दैट डिजाइन ऑफ योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट हाउस, दैट हाउस का क्या, असल में मुझे क्या लिखना है, देन द डिजाइन ऑफ दैट हाउस, देन द डिजाइन ऑफ दैट हाउस, यही लिखना है असल में, तो डिजाइन, डिजाइन नाउन जो है, डिजाइन दो बार आया तो नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े, इसीलिए क्या बनाए गए हैं, प्रोनाउन, तो मुझे क्या, कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे, दैट, तो दैट ही आएगा, डिस कभी नहीं आएगा, तो मैं क्या कहूंगा, द डिजाइन ऑफ योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दैट हाउस, देन दैट ऑफ दैट हाउस, बोलने में अजीब लगता है लेकिन सही यही है, ठीक है, तो क्या आएगा, देन दैट ऑफ दैट हाउस, देन दैट ऑफ दैट हाउस, चलो यहां पर ये जो देन है ये किसका काम, क्या काम करता है, प्रपोशन का काम करता है, ठीक है, देन दैट, दैट प्रपोशन के बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो दैट भी है एक प्रोनाउन है, तो काम क्या करता है, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट, कौन सा टाइप, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसी तरह आप क्या है, प्रपोशन, प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रपोशनल ऑब्जेक्ट है, आपके बाद क्या है, दैट हाउस, तो हाउस जो है ये क्या है, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट, कौन सा हाउस, दैट हाउस, और दैट जो है यहां पर ये हाउस को क्या डिफाइन करता है, और जो कोई हाउस क्या है, एक नाउन है, जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, तो दैट क्या है यहाँ पे
एडजेक्टिव का काम करता है। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलो पहले ये देखते। दैट इज माई पेन ऑन द टेबल। इज क्या है? वर्ब है। मेरा पेन, डैश इज माई पेन, दैट इज माई पेन ऑन द टेबल। तो पेन जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट। दैट इज व्हाट? वो क्या है? पेन है। तो ये पेन जो है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? इस जो है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं, उनके सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। किसका पेन? माई पेन। माई क्या है? इस नाउन को डिफाइन करता है, पेन को। और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो माई क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। ऑन क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑन के बाद कौन सा नाउन है? टेबल। तो ये क्या है? प्रपोशनल ऑब्जेक्टिव। द क्या है? आर्टिकल है। तो बचा वर्ड दैट। दैट क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। दैट भी लिख सकते हैं, दिस भी लिख सकते हैं। तो दैट कहकर मैं ये साबित करता हूं कि पेन जो है वो मुझसे दूर है। अगर मैं लिखता कि दिस इज माई पेन ऑन द टेबल, दैट मीन्स कि पेन जो है वो मेरे क्लोज है। तो दोनों सही है, दिस भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। दैट लगाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि पेन जो है वो मुझसे दूर है। ठीक है, अब ये देखो, दीज आर वेरी डेंजरस एनिमल्स। ये बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमल्स है। तो आर क्या है? वर्ब है। कौन है सबसे कौन है डेंजरस एनिमल्स? दीज। दीज क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। और आर क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब उसके ऑब्जेक्ट से उनके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करते हैं? नाउन या एडजेक्टिव। नाउन होगा तो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। यहां पर एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम किया। यहां पे दो है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। डेंजरस क्या है? एडजेक्टिव है। एनिमल्स क्या है? नाउन है। तो ऐसी सूरत में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करेगा? अगर सिर्फ डेंजरस होता तो एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता। नाउन होता तो सिर्फ नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता। जब एडजेक्टिव भी होगा और नाउन भी होगा तो ऐसी सूरत में नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो एनिमल सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट। कौन से एनिमल्स? डेंजरस एनिमल्स। वो कैसे डेंजरस? तो डेंजरस क्या है? इस नाउन को डिफाइन करने वाला जो वर्ड है वो डेंजरस है। और एनिमल्स, जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो डेंजरस क्या है? एडजेक्टिव है। कितने डेंजरस? वेरी डेंजरस। और जो कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव को, वर्ब या एडवर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो वेरी क्या है? एडवर्ब। These are very dangerous animals. Those भी आ सकता है। These क्या है? मतलब कि वो क्लोज है। Those कहता कि that means कि they are very far away from me. अब ये देखो, This is my birthday in this week. या it भी लगा सकते हैं। It is my birthday in this week. Is क्या है? verb है। दिस इज व्हाट या इट इज व्हाट? बर्थडे। बर्थडे क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। किसका बर्थडे? माई बर्थडे। माई जो है ये बर्थडे को डिफाइन करता है। बर्थडे क्या है? नाउन। और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो माई क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा टाइप? विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको छोड़ दो। इन क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्टिव। इन के बाद कौन सा नाउन है? वीक। तो ये क्या है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट है। कौन सा वीक? दिस वीक। दिस जो है ये किसको डिफाइन करता है? वीक को। वीक क्या है? नाउन। और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो दिस क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसी सूरत में दिस ही आएगा, क्योंकि आगे मैंने कहा ना दिस वीक, दिस इज माई बर्थडे या इट इज माई बर्थडे इन दिस वीक। तो अगर यहां पे वाज होता तो यहां पर भी दैट आता, तो यहां पर कभी दिस नहीं आता। तो मैं लिखता कि इट वाज माई बर्थडे या दैट वाज माई बर्थडे इन दैट वीक। अगर यहां पे दैट आता तो यहां पर भी दैट ही आना है, और अगर यहां पे कंडीशन वाज होता। ठीक है, तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि
ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है कौन कहां पे कैसे आते हैं, ठीक है। और अब मसला है कि एक चीज रह गया है, वो है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एक दो जगह मैंने जिक्र किया है, यहाँ पे दैट जो है ये एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया, यहाँ पे ये जो दिस है ये एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया। तो लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें, मैं 2 एग्जांपल्स या 3 एग्जांपल्स लिखूंगा, तो वहां से हम आसानी से सीखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव्स है उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। These are ripe mangoes. These mangoes are ripe. This is a very nice pen. This pen is very nice. तो देखो इस वर्ब सेंटेंस में वर्ब कौन है, आर। These are what mangoes. तो मैंगोज क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट, ठीक है। क्यों, लिंकिंग वर्ब है। कैसे मैंगोज है, राइप मैंगोज है, पके हुए। तो राइप जो है वो इस नाउन को डिफाइन करता है, जो कोई वर्ड किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो राइप क्या है, एडजेक्टिव। तो दीज क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है कौन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। काम क्या करता है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो ये देखो मैंगोज आर राइप, आर क्या है, वर्ब है। दीज मैंगोज आर व्हाट, राइप। तो राइप क्या है, सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट। राइप एडजेक्टिव का काम यहां पे करता है, यहां पे क्या काम करता है, सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट का, ठीक है। दीज मैंगोज आर राइप, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, मैंगोज, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या कौन से मैंगोज राइप है, दीज। तो दीज जो है ये किसको डिफाइन करता है, मैंगोज को। मैंगोज क्या है, एक नाउन है। और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो दीज क्या है, एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस दैट दीज दोज, अगर इनके बाद नाउन आए तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, अगर नहीं आया तो प्रोनाउन का काम करते हैं। देखो यहां पे दीज है, इसके बाद कोई नाउन आया है, इसके बाद नाउन नहीं आया तो सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही आया है। और यहां पर जो है दीज जो है ये इसके बाद क्या आया है, मैंगोज। मैंगोज क्या है, नाउन है, यानी कि यहां पर इसके बाद नाउन आया है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम। इसके बाद नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। चलो इसको देखें। इस जो है ये क्या है, वर्ब है। दिस इज अ वेरी नाइस पेन, दिस इज व्हाट, पेन है। तो पेन जो है ये सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट का काम करते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा कि अगर लिंकिंग वर्ब के बाद वो एडजेक्टिव भी आए और नाउन भी आए तो उस सूरत में नाउन जो है वो सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट का काम करता है, ठीक है। और अगर सिर्फ एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट का काम करता, और अगर सिर्फ नाउन होता तो नाउन ही सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट का काम करता, और अगर एडजेक्टिव भी होगा नाउन भी होगा तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ नाउन ही सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट बनेगा, ठीक है। कैसा पेन है, नाइस पेन, अच्छा पेन है। तो नाइस जो है किसको डिफाइन करता है, पेन को। पेन क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। कितना अच्छा है, वेरी नाइस। और जो कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो वेरी क्या है, एडवर्ब। ए क्या है, आर्टिकल है। दिस इज अ वेरी नाइस पेन, तो दिस जो है ये क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते कौन है, नाउन या प्रोनाउन। और दिस, तो दिस नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह इज क्या है, वर्ब है। दिस पेन इज व्हाट, नाइस। यहां पर नाइस के एडजेक्टिव का काम करता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एडजेक्टिव का काम करता है, और इस सेंटेंस में नाइस जो है सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट का काम करता है, ठीक है। तो नाइस क्या है, एक एडजेक्टिव है, काम करता है सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट का। कितना अच्छा पेन है, वेरी नाइस। तो वेरी जो है किसको क्वालिफाई करता है, नाइस को। नाइस क्या है, एक एडजेक्टिव। और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन, सॉरी किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करे, या वर्ब को या एडवर्ब, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है। तो व्हाट इज वेरी नाइस, क्या अच्छा है, पेन। पेन क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। कौन सा पेन, दिस पेन, ये पेन। तो ये इस पेन को डिफाइन करता है, तो ये एडजेक्टिव है,
जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव है। तो दिस क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दिस की जगह मैं दोज भी इस्तेमाल कर सकता हूं, दिस की जगह यहां पे दैट भी इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, आई थिंक नाउ it will be easy for you to identify is this is demonstrative pronoun or is this is demonstrative adjective। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अगर नाउन ना आए तो प्रोनाउन का काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है। ठीक है, और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की प्लेस पे ही नहीं आते बल्कि ऑब्जेक्ट की जगह भी आते हैं। मिसाल के तौर पर जब क्वाड बिहाइंड होता है या एलबीडब्ल्यू होता है तो उस सूरत में ये जो बॉलर होता है या विकेट कीपर होता है या बाकी प्लेयर्स जो होते हैं वो अंपायर से अपील करते हैं हाउ इज दैट, हाउ इज दैट। तो दैट जो है ये ऑब्जेक्टिव की जगह आया है। क्या कभी कभार हम कहते हैं ना व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो दिस और दैट ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्टिव की जगह आते हैं। तो ये सब्जेक्टिव, इनका सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव के जगह है आते हैं, और हमने एग्जांपल्स में देखा प्रपोजनल ऑब्जेक्टिव की जगह भी आते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आई एम प्रीटी श्योर you have enjoyed the lecture. If you have still any query, any confusion, any doubt in your mind, share your queries, your confusion, share your doubts in the comment section. I am there to help you. आपको मेरी मेहनत, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा मटेरियल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each video at first place in future, and don't forget to watch the next one. I know you are gonna love it. Thank you so much. Love you all.